of microbes. Bacteria are नेक्स्ट पॉइंट है सम अदर यूजेज ऑफ माइक्रोब्स. useful in leather and jute industries. Tanning to convert animal skin into leather is done with the help of bacteria. इसमें आ जाता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी लेदर और जूट इंडस्ट्री जो होती है उसमें भी जो हेल्प करते हैं. इसमें एक प्रोसेस होती है टैनिंग. टैनिंग में क्या करते हैं कि जो हमारे एनिमल्स की स्किन होती है उसको लेदर में कन्वर्ट करने के लिए बनाने के लिए बैक्टीरिया जो है हेल्प करते हैं. Jute industry separation of fibers is also done by action of bacteria. This is called retting of fibers. Bacteria also help. इसके अलावा जो हमारे जूट इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर जूट के जो पौधे होते हैं प्लांट्स होते हैं उनके फाइबर्स को जो सेपरेट किया जाता है तो ये प्रोसेस रेटिंग ऑफ फाइबर्स होती है जो कि बैक्टीरिया की हेल्प से ही होती है. In generating biogas, they act on waste products like animal wastes, garbage, agricultural wastes and produce biogas. Biogas is used as a fuel. इसके अलावा बैक्टीरिया जो है बायोगैस को जनरेट करने में भी हेल्प करते हैं. ये हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं लाइट एनिमल्स वेस्टेज, गार्बेज, कूड़ा करकट, एग्रीकल्चर वेस्टेज, ठीक है, इनको जो है बायोगैस में प्रोडक्ट कर देते हैं और बायोगैस जो होती है हमारे फ्यूल के रूप में यूज होती है, ईंधन के रूप में यूज होती है. Bacteria live in the digestive system of ruminants like cows and goats. These bacteria help the ruminants digest cellulose present in grass and plants. हम 7th क्लास में रीड कर सकें कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रूमिनेट्स डाइजेशन सिस्टम पाया जाता है जिसके अंदर कि वो ग्रास जो अपना फूड खाते हैं ग्रास वगैरह उसको पहले सीधे खा जाते हैं और उसके बाद दोबारा वापस अपने मुंह में लाकर उसको चबाते हैं. जो प्रोसेस रूमिनेट्स होती है इसके अंदर भी जो है इस प्रोसेस के अंदर भी हमारे बैक्टीरिया जो है यूजफुल होते हैं. ये उसके अंदर भी जो हेल्प या काम आते हैं. To show that formation of curd takes place only in warm milk. Things needed: 3 cups cold milk, lukewarm milk, hot milk, curd, spoons. Method: we take 3 cups and label them as A, B and C. We put cold milk in cup A, lukewarm milk in cup B, and hot milk in cup C, respectively. We add a spoonful of curd in each cup and stir. Keep all the cups in a warm place for a few hours. Observation: curd is formed only in cup B containing lukewarm milk. No change is observed in cup A and cup C. Conclusion: the curd which is added initially in all the cups contains some bacteria. When curd is mixed with lukewarm milk, these bacteria multiply and produce acidic products. The milk curdle and thicken to form curd. Bacteria are inactive in cold milk, so no curd is formed. Hot milk kills bacteria, so no curd is formed. To observe increase in the volume of dough during fermentation of sugar present in dough by yeast cells. Things needed: half a cup of flour, 2 tablespoons of sugar, yeast powder. Method: we take half a cup of flour, atta or maida. Add 2 tablespoons of sugar and mix with warm water. Add a tablespoon of yeast powder and knead to make a soft dough. Put the soft dough in a container and leave it in a warm place for 2 hours or more. Observation: there is an increase in the volume of the dough. The dough will rise and look bubbly. Reason: the yeast cells immediately feed on the sugar in the dough mixture. The yeast breaks down the sugar because of respiration to get energy. And in this process, carbon dioxide gas and alcohol are also produced. Bubbles of carbon dioxide gas fill the dough. As the gas rises up, we observe an increase in the volume of dough mixture. Harmful microorganisms. Microorganisms are harmful to us in many ways.
Some of the microorganisms नेक्स्ट पॉइंट है हार्मफुल माइक्रोनिजम्स। तो माइक्रोनिजम्स जो होते हैं हमारे हेल्पफुल होने के साथ साथ ये हार्मफुल भी होते हैं। तो किस तरीके से होते हैं हमें अभी रीड करते हैं। cause diseases in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. Let us study the following harmful effects of microorganisms. Microorganisms cause diseases. In humans, माइक्रोनिजम्स जो है इनकी वजह से हमें ये माइक्रोनिज्म कई डिजीज़ के रीजन होते हैं। इनकी वजह से कई डिजीज़ मतलब के पैदा होती है। तो स्टार्टिंग में हम पढ़ देंगे कि ह्यूमन में माइक्रोनिज्म से क्या क्या डिजीज़ होते हैं। pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, or the food we eat. They also get transmitted by direct contact with an infected person or are carried through animals. Microbial diseases that can spread from an infected person to other healthy person through air, water, food, physical contact, or by animals are called communicable diseases. सच डिजीज कैजिंग माइक्रोनिजम्स, कुछ ऐसी बीमारियां जो कि माइक्रोनिजम्स की रीजन से की वजह से फैलती है वो पैथोजेंस कहलाती हैं। इसके अंदर बेटा कम्युनिकेबल डिसीजेज आती है जिसके अंदर की जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है वह दूसरे अदर हेल्थी पर्सन के कांटेक्ट में आता है। किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कांटेक्ट या बाय एनिमल। तो उसके कांटेक्ट में आने से जब वह हेल्थी पर्सन के अंदर वह डिजीज स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, तो यह कम्युनिकेबल डिजीज होती है। Examples of some communicable diseases are cholera, common cold, chickenpox, and tuberculosis. Let us study in detail the various ways by which communicable diseases spread. Through the air we breathe, from an affected person. कम्युनिकल जो डिजीज होती है कम्युनिकेबल, वो किन किन रीजन से फैलती है, उनके रीजन है जो अभी हम रीड करेंगे। Example, when a person suffering from common cold sneezes or coughs, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are thrown out. When a healthy person breathes this air, contaminated with viruses, these viruses enter into the body and cause diseases through the water we drink. Some diseases. तो फर्स्ट पॉइंट आते हैं थ्रू द एयर वी ब्रेथ, कि हवा के द्वारा जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा जो ये बीमारियां होती है बैक्टीरिया की, वो कैसे फैलती है। तो माइक्रोनिजम्स के कैजेस की वजह से कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस, पेनिमोनिया, ये एक्सेट्रा जो डिजीज होती है फैलती है। जब कोई एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई सफरिंग पर्सन होता है, कोई बीमार व्यक्ति होता है फ्रॉम कॉमन कोल्ड, तो वह या तो स्नीज करता है, छींकता है या कफ करता है, तो उसके जो कीटाणु जर्म्स जो होते हैं वो एयर के अंदर फैल जाते हैं और उस एयर को जब कोई हेल्थी पर्सन ब्रेथ लेता है, उसमें सांस लेता है, तो वो जर्म्स जो है उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो उस पर्सन हेल्थी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके लिए हमें, इस रीजन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हैंड और हैंडी कैप्स ऑन आवर माउथ, हमें हमारे माउथ के ऊपर जो है जब भी छींकते हैं तो रुमाल का या हाथ से ढककर ही छींकना चाहिए। Spread through water. For example, cholera, typhoid, jaundice, etc. The cholera-causing microbes enter a healthy person through the water he or she drinks and infect them. After floods or any other natural calamity, we are advised to drink boiled water. नेक्स्ट है थ्रो वी वाटर वी ड्रिंक, जिस पानी हम पीते हैं उसके द्वारा जो डिजीज स्प्रेड होती है, फैलती है। तो कुछ डिजीज होती हैं जैसे कि जो कि वाटर के थ्रू फैलती है, कोलोरा, टाइफाइड, जंगडाइस एक्सेट्रा। तो क्लोरा जो होता है वो माइक्रोवेव सेंटर हेल्थी पर्सन के अंदर जो है एंटर कर देता है, किसके थ्रू? वाटर के थ्रू, जो हम पीते हैं उसके थ्रू, और हेल्थी पर्सन को इन्फेक्ट कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब नेचुरल क्लाइमेट आती, कोई आपदा जैसे बाढ़ वगैरह आती है, तो उस समय हमें सलाह दी जाती है कि वाटर को जो उबाल कर पीना चाहिए ताकि उसके अंदर के जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। Why? This is because many disease-causing microorganisms are present in the water at that time. Boiling of water kills the microorganisms. Through food we eat, protozoa, bacteria, and spores of fungi are present in the soil, from where they enter into our food. We should wash the fruits and vegetables after bringing them from the market. नेक्स्ट है थ्रो द फूड वीट, जो भोजन हम खाते हैं उसके थ्रू जो है ये बैक्टीरिया कैसे स्प्रेड करते हैं। तो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एंड द स्पोर्स ऑफ फंगी, ये हमारे सोइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और ये वहाँ से जो है हमारे फूड में एंटर कर जाते हैं। जब हम इनको खाते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। इसलिए हमें जो भी कोई फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट से लेके आते हैं तो सबसे पहले उनको धोना चाहिए, धोने के बाद ही उनको जो यूज करना चाहिए।
through insects and animals. There are some insects and animals which act as carriers of disease-causing microbes. These animals and insects are called vectors. Vectors carry the disease-causing microbes from an infected person to a healthy person and cause diseases. कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं बेटा जो कि इन कह सकते हैं हम डिजीज़ को, जो कैजिंग माइक्रोवेव्स के कारण जो डिजीज़ होती है उनके रीजन बनते हैं जिनकी वजह से कि जो बीमारियां फैलती हैं। तो हम इनके वन बाय वन रीड करते हैं। Housefly. The housefly is perhaps the most dangerous disease carrier. It carries फर्स्ट हाउस फ्लाई यानी कि जो हमें घरों के अंदर जो मक्खी पाई जाती है ये, तो ये हाउस फ्लाई जो होती है मोस्ट डेंजरस होती है, सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है बीमारियों को फैलाने में। the disease-causing microbes on its legs and mouth parts from feces and other organic waste. The हाउस फ्लाई के जो पार्ट्स होते हैं, उनके माउथ होते हैं और जो लेग्स होती है, ये माइक्रोवेव जो होते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रोवेव्स होते हैं, इनकी पैर में, लेग्स में और माउथ के जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर जो है ये उनकी कीटाणु जीवाणु जो रहते हैं, कीटाणु जर्म्स माइक्रोवेव्स रहते हैं। fly, when sits on our exposed cooked food, leaves these disease-causing microbes on the food. और वहाँ से जो इनके जो बैक्टीरिया होते हैं, वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ये हमारे जो भोजन होते हैं, फूड होते हैं, उनके अंदर बैठकर वहाँ पर इनको छोड़ देती है, जिससे कि जब हम उस फूड को खाते हैं तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। If this food is eaten, it causes diseases. Various diseases like cholera, typhoid, dysentery, and tuberculosis are known to spread by houseflies through contaminated food and water. Cockroaches. We can sometimes see cockroaches crawling over the foodstuffs in our kitchen at night. They generally inhabit sewage pipelines and latrines and also have an easy access to the kitchen. They therefore bring the disease-causing microbes from those dirty places and leave them over to our food. Various diseases like cholera, dysentery, and typhoid are known to spread by cockroaches through contaminated food. Female. इसके बाद जो कॉकरोच होता है वो भी ऐसे ही हमारी जो डिजीज होती है उनको वन पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर स्प्रेड करता है। इससे भी जो है कई डिजीज होती है उनका, इसकी वजह से वो बीमारियां जो है वो फैलती है। Anopheles mosquito. The female Anopheles mosquito sucks the blood of human beings, and in doing so, it also transmits Plasmodium protozoa into human blood. Plasmodium cause malaria, a fatal disease of human beings. Aedes mosquito. नेक्स्ट है मॉस्किटो। तो मॉस्किटो जो होता है, जो फीमेल एंटोफ्लीस होती है मॉस्किटो की, वो ह्यूमन जो ब्लड होती है उसको सक कर लेती है, चूस लेती है, और जब वह ऐसा करती है तो उसके अंदर जो होता है हमारे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स होते हैं, वो उसके ब्लड के अंदर ट्रांसमिट्स कर देती है पर्सन के ह्यूमन ब्लड के अंदर, जिससे कि मलेरिया जो बीमारी है वो हो जाती है। इसके अलावा जो मॉस्किटो डेंगू वायरस जो होता है उसको भी फैलाती है। Mosquito. Aedes mosquito acts as carrier of dengue virus. All the mosquitoes breed in water. Hence, one should not let water collect in coolers, tires, flower pots, etc. By keeping our surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. General preventive measures against microbial diseases. तो इसके लिए हमें कुछ सामान्य उपाय करने चाहिए। इन माइक्रोबियल जो डिजीज होती हैं उनको रोकने के लिए कुछ उपाय हैं। Vegetables and fruits must be properly washed before they are eaten. If possible, the drinking water should be boiled, particularly when there are chances of infection. Keep the patient in complete isolation. Keep the personal belongings of the patient away from those of the others. Maintain personal hygiene and good sanitary habits. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स हम मार्केट से लेके आते हैं उनको प्रॉपर हमें धोकर जो है वो ईट करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो हम वाटर ड्रिंक करते हैं उसको उबाल कर पानी पीना चाहिए। अगर ये बिल्कुल ही पूर्णतः अगर पॉसिबल ना हो तो अगर हमें जब कुछ संभावना लगे कि पानी के अंदर बैक्टीरिया है तो हमें ज़रूर उसको उबाल कर ही पीना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है, बीमार व्यक्ति है, तो उसको कम्प्लीटली आइसोलेशन में रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको हमें पर्सनली उससे जो बिलोंगिंग जो चीज़ें होती हैं वो दूसरे उस चीज़ को यूज ना करें, उनको दूसरों से दूर रहे, और हमें पर्सनली हाइजीन साफ़ सफाई
का जो है ध्यान रखना चाहिए। Vaccination to be given at suitable age to get immunity. Good sanitation in the community. Do not eat stale food. Protect yourself from mosquito bites by using mosquito nets and mosquito repellent creams. Do not allow water to collect in the surroundings to prevent breeding of mosquitoes. Put fine wire mesh on doors and windows to prevent mosquitoes from entering the homes. इसके अलावा जो है हमें जो है सूटेबल एज, जब हमारी एज के अकॉर्डिंग हमें जो वैक्सीनेशन होता है वो करना चाहिए जो कि हमें इम्यूनिटी देता है। इसके अलावा जो कम्युनिटी सैनिटेशन होता है, सामुदायिक साफ सफाई है, उसको भी हमें मेंटेन रखना चाहिए। खुद को जो है स्वयं को मॉस्किटो जो होते हैं, हमें मच्छर होते हैं, उनकी बाइट से जो है वो बचाना चाहिए। इसके लिए हमें विभिन्न जो भी हमारे पास तरीके होते हैं, तो हमें मच्छरदानी में सोना चाहिए या माइक्रोक्यूटो जो रिपेलेंट क्रीम्स होती है उसका यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें जो वाटर होता है उसको एक जगह पर हमारे चारों साइड जो है इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उनको के अंदर भी जो क्या है मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा हमें डोर्स और जो विंडो होते हैं उसको प्रॉपर बंद करके सोना चाहिए, जिससे कि हमारे घर के अंदर जो है मॉस्किटो एंटर ना कर पाए। Disease causing microorganisms in animals. Several उसके बाद हम जो डिजीज हमारी बैक्टीरिया के द्वारा जो एनिमल्स के थ्रू जो स्प्रेड होती है उनके बारे में देखेंगे। microorganisms cause diseases not only in humans but also in other animals like cows, buffaloes, and poultry birds. These diseases reduce the milk production, egg production, growth of birds, and even cause death. बेटा ह्यूमन के अलावा हमारे कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी ये बीमारियां जो स्प्रेड होती है, जैसे कि काऊ, फैलो, ठीक है, एक्सेट्रा। इनके अंदर जब ये बीमारियां हो जाती है, इनसे क्या इफेक्ट पड़ते हैं कि जो मिल्क प्रोडक्शन होता है, जो दूध उत्पादन होता है वो कम हो जाता है, अंडे जो देते हैं उनकी वे कम हो जाते हैं, बर्ड्स की ग्रोथ कम हो जाती है और यहाँ तक कि उनकी डेथ भी हो सकती है। Some common diseases caused by microorganisms in animals are shown in Table 2.3. Table 2.3. Common तो कुछ माइक्रोनिज्म्स डिजीज होते हैं जो कि एनिमल्स के अंदर जिनके फैलते हैं जिनसे वो इस टेबल में दिए गए हैं, आपको इसको अच्छे से रीड करना है। diseases caused by microorganisms in animals. Serial number: disease-causing microorganisms, infected animals, diseases. 1. Bacteria, cattle, anthrax, tuberculosis, poultry, tuberculosis, fowl cholera, diarrhea. 2. Viruses, cattle, foot and mouth disease, rinderpest, cattle plague, cowpox, poultry, fowlpox, ranicate, bird flu. Disease-causing microorganisms in plants. Several microorganisms नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोनिज्म इन प्लांट्स, पौधों के अंदर जो माइक्रोनिज्म्स के द्वारा जो डिजीज फैलती है। cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, apples, oranges, cotton, jute, etc. कई तरह के ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर की इन वजह से जो बीमारियां वो स्प्रेड होती है, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, एप्पल्स, ऑरेंज, एक्सेट्रा। ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर डिजीज होती है वो ट्रांसफरमेट होती है, किस वजह से? उनके सीड से, एयर से एंड सोइल से वो बीमारियां एक पौधे से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्प्रेड होती है। The diseases reduce the yield of crops. Some of the common diseases affecting the plants are shown in Table 2.4. Plant diseases are transmitted through seed, air, and soil. Some of the common diseases affecting the plants are given in Table 2.4. Common diseases caused by microorganisms in plants. See तो कुछ कॉमन डिजीज है जिन जो कि प्लांट्स के अंदर स्प्रेड होती हैं, तो उनकी टेबल दी गई है बेटा, इसको आपको रीड करना है अच्छे से। Serial number: plant disease, disease causing microorganisms, plant, crop, infected. 1. Blight, bacteria, rice. 2. Citrus canker, bacteria, citrus fruits. 3. Red rot, fungi, sugarcane. 4. Rust, fungi, wheat, mustard. 5. Ticca, fungi, groundnut. 6. Smut, fungi, wheat. 7. Tobacco mosaic, virus, tobacco. Plant diseases can be controlled by spraying chemicals which kill the microbes on infected parts of the plants. Microorganisms cause food poisoning. Sometimes तो माइक्रोनिज्म्स की वजह से जो कुछ फूड पॉइजनिंग होता है उसके बारे में देखेंगे। even stored food may get spoilt due to a variety of reasons, such as improper cooking, food not properly preserved,
change in temperature of refrigerated foods due to तो कुछ बेटा कुछ सब कई बार क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है वो विभिन्न कारणों की वजह से कई बार ख़राब होता है, स्पॉइल हो जाता है। तो इसके कुछ रीज़न होते हैं कि इन वजह से होता है कि या तो उनको अच्छे से ढककर नहीं रखा जाता है या इम्प्रॉपर तरीके से उनको कुक किया जाता है, अच्छे से उसको पकाया नहीं जाता है, फूड की जो प्रिवेटिंग होती है उनको अच्छी तरह से प्रॉपरली वो नहीं की जाती है, रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो पावर फ्लूइड वो मतलब कि मेंटेन नहीं होता है। तो इन वजह से कई बार क्या होता है हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है। power fluctuations, etc. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances which are harmful for our health. The toxic substances produced by microorganisms make the food poisonous, causing serious illness called food poisoning. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वे हमारे कई बार क्या होता है फूड के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट करते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मफुल, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल रहते हैं। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं ये माइक्रोनिजम्स के द्वारा जो है प्रोडक्ट होते हैं, बनते हैं, जो कि हमारे फूड को पॉइजनस या जहरीला कर देते हैं, उसको यानी कि बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं, जो जिसकी वजह से कि हमारी सीरियस इलनेस, हमें सीरियस खतरनाक बीमारियां हो जाती है कि जो कि फूड पॉइजनिंग कहलाती है। It can sometimes even cause death. The spoiled food can be identified by its unpleasant smell, changed odor, and bad taste. The major symptoms of food poisoning are vomiting, diarrhea, abdominal pain, headache, and fever. Bacteria तो स्पॉइल्ड फूड जो होता है इसको हम कैसे पहचान करते हैं? कई बार इनसे स्मेल आने लग जाती है, इनका जो चेंज है, जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। कई बार इसके मेजर सिम्टम्स भी दिखते हैं जिनकी फूड पॉइजनिंग के, जैसे कि वोमिटिंग, उल्टी होने लग जाती है, दस्त लग जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, फीवर हो जाता है। that cause food poisoning are Salmonella, A. Staphylococci, and Clostridium. Fungi that cause food poisoning are Aspergillus and Penicillium. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. There are many ways of preserving food. Food preservation. इसके लिए जो हमें फूड को प्रॉपर रूप से प्रिजर्वेशन करना चाहिए, तो इसके लिए कुछ उपाय बताए हैं। We know that when cooked food or milk is left in a warm and moist place for a long time, it gets spoiled. Food gets spoiled due to microbial contamination. Most microorganisms cannot grow or multiply when the conditions हम सभी जानते हैं कि जो हमारे फूड और जो मिल्क होते हैं यदि उनको काफ़ी लंबे टाइम तक वार्म या मोस्ट प्लेस के ऊपर छोड़ दिया जाता है लंबे टाइम तक, तो ये जो है ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ माइक्रोनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि मल्टीप्लाई या फिर ग्रो नहीं हो पाते। किस कंडीशन में? कुछ कंडीशन होती है जिनमें कि ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। are dry. Temperature is very low. Temperature is very high. 3 रीज़न बताए गए, या तो टेम्परेचर ज़्यादा ड्राई हो कंडीशन, मतलब वहाँ का जो कंडीशंस होती है वो ड्राई होती है, टेम्परेचर ज़्यादा लो होता है, या फिर टेम्परेचर वेरी हाई होता है। All methods of preserving food ensure that favorable conditions are not provided for microorganisms to grow and multiply. The process by which spoilage of food is prevented using chemical or physical methods is called food preservation. तो फूड प्रिजर्वेशन वह प्रोसेस होती है जिसके अंदर की जो स्पॉइलेज फूड होता है इसको जो है केमिकल्स और फिजिकल्स के यूज़ के से जो है फिजिकल मेथड के द्वारा जो है हम उसको सुरक्षित रखते हैं। ये फूड प्रिजर्वेशन होता है। The most common methods used for food preservation are described below. Chemical method. Food can be सबसे पहले हम केमिकल मेथड के बारे में देखते हैं। preserved by using certain chemical substances which can check the growth of microorganisms. Such chemical substances are called food preservatives. Most chemical preservatives remove oxygen from the food item. This helps in preventing microbial growth. तो हम जो फूड होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जो कि माइक्रोनिजम्स की जो ग्रोथ होती है उससे उसको चेक करते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको फूड प्रिजर्वेशंस कहते हैं। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो फूड के अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं और इसकी हेल्प से जो माइक्रोबियल की जो ग्रोथ होती है, जो हमारे जीवाणु होते हैं जो फैलते हैं, कीटाणु जिनकी ग्रोथ होती है वो रुक जाती है वहीं पर।
Sodium benzoate and potassium metabisulfite are common food preservatives. Sodium benzoate is used for preserving fruit juices and squashes. Potassium इसमें हमारा सोडियम बेंजोजाइट, क्रेटिक एसिड एंड पोटेशियम मेटाबिलिसल्फराइट जो होता है, ये कॉमन फूड प्रिवेंटिव्स जो होते हैं। सोडियम बेंजोजाइट जो होता है, इसको फ्रूट जूस और में को प्रिवेंटेड यानी सुरक्षित रखने में यूज किया। Metabisulfite is used for preserving cut fruits, jams, jellies, etc. Preservation by common salt. For centuries, people have preserved fish and meat by salting. Meat and fish. नेक्स्ट है प्रिवेंटेड बाय कॉमन सोल्ट, जो हमारा नमक होता है उसके द्वारा हम अपने भोजन को कैसे सुरक्षित रखते हैं। इसमें जो हमारे एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, इन फिश, मीट, इनको जो है सोल्टिंग की प्रोसेस के तहत जो सुरक्षित रखा जाता है। Are covered with dry common salt. Salting. इसमें मीट वगैरह जो होती है, इनको जो है कॉमन सोल्ट होता है, इनसे इनको ढक दिया जाता है, इनके ऊपर एक इसकी परत कर दी जाती है। Draws out water from the food, thus prevents microbial growth and reproduction. इसे जो फूड के अंदर जो मोस्ट होती नमी होती है, वो सोल्ट होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको खत्म कर देता है, जिससे कि जो माइक्रोबियल होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है और उनका रिप्रोडक्शन नहीं होता है। Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. Preservation by sugar. Sugar reduces the moisture content of the food, thus inhibits the growth of food-spoiling microorganisms. Jams, jellies, and squashes are preserved by sugar. नेक्स्ट मेथड है प्रिवेंशन बाय शुगर, यानी कि शुगर के द्वारा भी हम जो मॉइस्चर होते हैं उनके अंदर जो फूड होते हैं, यानी कि हम कहते हैं भोजन सुरक्षित रखने के लिए फूड आइटम को हम शुगर का भी यूज करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो इन बैक्टीरिया की, वो फूड स्पॉइलिंग मैकेनिज्म्स के द्वारा जो फूड स्पॉइलिंग होता है, तो शुगर के द्वारा उनकी ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इसका यूज हम जेम्स, जेलीज में करते हैं। Preservation by oil and vinegar. Oil and vinegar prevent the growth of food-spoiling microorganisms. Mustard oil and vinegar, sirka, are widely used as preservatives for fruits and vegetables in the form of pickles. Meat and fish are also preserved by this method. Pasteurization. इसके अलावा हम ऑयल एंड वैगनर का भी इसमें यूज करते हैं। ऑयल और वैगनर का यूजेज हम जो है एक तरह से अचार, हमारे वेजिटेबल्स और जो अचार होते हैं उनमें यूज करते हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए। Pasteurization is a process for preservation of milk. नेक्स्ट प्रोसेस है पास्चराइजेशन। जो पास्चराइजेशन जो होती है, ये एक तरह से मिल्क को सुरक्षित रखने की प्रोसेस होती है। In this method, milk is heated at about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds to kill the bacteria present in it, and cooling it quickly to 10 degrees Celsius to prevent the remaining bacteria from. इस प्रोसेस के अंदर जो है मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, कम से कम 15 to 13 सेकेंड तक। इससे क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसके बाद क्विकली जो है दूध को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो रिमेनिंग हो जाती है, इनकी कम हो जाती है, रुक जाती है। Growing. The milk is then stored in sterilized bottles or pouches in cold places. Pasteurized milk can be consumed without boiling because it is free from harmful microorganisms. This method was invented by Louis Pasteur in 1862. By cooling इस मेथड का जो खोज की थी लुई पास्चर ने 1862 में की थी। or freezing. Food like fruits, vegetables, meat, and cooked food are kept at low temperature in the refrigerator or deep freezers to prevent their spoilage. Low temperature prevents the spoilage of food because it retards the growth of microorganisms. नेक्स्ट प्रोसेस है बाय कूलिंग ऑफ फ्रीजिंग, यानी कि ये कॉमनली आप लोग घरों में देखते हैं, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, मीट होते हैं, इनको जो है हम लो टेम्परेचर पे रखने के लिए फ्रीज रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है, जिससे कि ये जो हमारा फूड होता है ये ख़राब नहीं हो पाता, क्योंकि लो टेम्परेचर जो होता है फूड को ख़राब होने से बचाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है।
canning. Cooked food is first heated to a high temperature to kill bacteria and also its spores to obtain sterilized food. The sterilized food is then sealed in airtight cans to prevent reinfection by microorganisms. This air-free packing is also called vacuum packing. Preservation by heating. Heating kills many microorganisms and prevents the food from spoilage. नेक्स्ट प्रोसेस है प्रिजर्वेशंस बाय हीटिंग, यानी कि हीटिंग किसी भी पदार्थ को हम फूड आइटम्स को गर्म करके भी जो है प्रिजर्वेशंस उसका कर सकते हैं, खराब होने से हम उसको बचा सकते हैं. Some food items are preserved only through heating. For example, we can prevent the spoilage of milk for a long time only through boiling. Milk is partially sterilized by heating it for a short time around 1 to 2 seconds at a temperature exceeding 135 degrees Celsius. This is called ultra-heat treatment. By dehydration. Since moisture is one of the main requirements for microbial growth, removal of water from food materials is an efficient method of food preservation. The process of removal of water from a substance is called dehydration. Sun drying. बाय डिहाइड्रेशन से इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे जो भी कोई फूड होते हैं या जो भी जिस चीज़ से हमें बचाना है, ख़राब होने से बचाना है, उसके अंदर क्या होते हैं, जो मॉइस्चराइज़र होती है, नमी होती है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है. तो दी प्रोसेस ऑफ वो है प्रोसेस जिसके अंदर की किसी भी सब्सटेंसेस से वाटर जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, डिहाइड्रेशन होता है. इसका यूजेज हम जैसे हमारे फूड आइटम्स है, इसके अलावा व्हीट राइस एंड पल्सेस है, उनको क्लीन करते हैं, स्टार्टिंग में साफ़ करते हैं, तो उनको जो सूरज की जो प्रकाश होता है उसके अंदर इससे सुखाया जाता है, जिससे कि इनके अंदर के बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं और वो ख़राब नहीं होते हैं. Is a traditional method of preserving food. Wheat, rice, and pulses are cleaned and dried in the sun. Vegetables like cauliflower, spinach, methi are also preserved in this manner. Advantages of food preservation. It decreases the food wastage by avoiding spoilage. It increases the storage period of food materials. Nutritional value of the food is retained for a longer period. It ensures that food availability in distant places and during off-season. अब जो हमें फूड प्रिजर्वेशंस के बारे में रीड किया है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम. तो इस प्रोसेस के द्वारा हम जो फूड की वेस्टेज होती है उसको रोक सकते हैं, यानी कि फूड जो है ख़राब नहीं होगा तो फूड जो है वेस्ट भी नहीं होगा. इससे क्या होता है कि जो फूड होता है हमारा वह लॉन्ग पीरियड तक, लंबे टाइम तक जो है उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक, अगर वह ख़राब नहीं होता है तो. इससे जो है फूड के अंदर की जो न्यूट्रिशनल जो पोषक तत्व होते हैं वे लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं. इसके अलावा ये इंश्योर होता है कि जो फूल अवेलेबिलिटी होती है, फूल की जो उपलब्धता होती है वह लंबे समय तक हम उसको प्राप्त कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफ सीजन, यानी कि अगर कोई चीज़ ऑफ सीजन है, उस सीजन में नहीं है और तो उसको हम इससे प्रिवेंटल करके लंबे टाइम तक जो है यूज कर सकते हैं. सो बेटा आपका लेसन जो है कंप्लीट होता है. थैंक यू.